nth order discrete time system. Last time हमने continuous time system पढ़ा था. Let us now concentrate on discrete time system, nth order discrete time system. So it will be represented by this equation. This is the general equation. A के coefficient, y is the output, n minus k equal to k changing 0 to m, bk x n minus k changing 0 to n. Okay, this is the nth order system where y is the output and x is the input. So nth order discrete time system can be represented by this equation. Okay, now it will have solution yn, and that will be yn. The solutions will be similar to that we have described earlier also. It will have some particular solution depending upon the input and some homogeneous solution independent of input. Homogeneous solution means it will be independent of input. So output will have two parts, one natural response, another one forced. This will be the natural response, this will be the natural response, and this will be the forced response. Natural response because of the system itself, and forced response because of the inputs. So homogeneous solutions can be obtained by if we put all the input component to be 0. It means the left hand side, when left hand side is equal to 0. When left hand side is equal to 0. Then the system will have homogeneous solution. इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होंगे वो होमोजेनियस होंगे. Okay, and this is known as natural response. Natural response मतलब response which is independent of input. So this response will be there when the system will have the 0 input. Okay, now let us, this we discussed last time we took an example also. So if we take 0th order input, 0th order discrete time system, 0th order discrete time system कौन सा होगा, जिसमें कि n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 0. So it means that अगर हम ये जनरल इक्वेशन को डिड्यूस करें तो yn will be equal to summation k changing 0 to n bk divided by a naught x of n minus k. ये इक्वेशन आ गई. Okay, so it means that yn is the explicit function of input, the present input, and the previous values of the input. Okay, previous values of the input. जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या था, yn was depending upon
पास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑल्सो। इसमें नहीं है, इसमें क्या है कि yn इज ओनली द फंक्शन ऑफ इनपुट्स, yn इज ओनली द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। जो हमने लास्ट टाइम किया था वो था जब yn वॉज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन, मतलब प्रेजेंट आउटपुट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट वैल्यूज ऑफ द आउटपुट्स, तो उसकी वजह से रिकर्सिव नेचर आता था। ये जो सिस्टम है इट विल बी नॉन रिकर्सिव, दिस सिस्टम विल बी नॉन रिकर्सिव, दिस सिस्टम विल बी नॉन रिकर्सिव, that is we do not have recursive equation in this case because the output only depend upon present value of the input or the past values of the input, okay, इस वजह से ये नॉन रिकर्सिव। अब इसका yn कैसे होगा, इसका yn कैसे होगा वो देखते हैं। अब आपको पता ही है कि अगर ये सिस्टम लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट है तो हम इसको इस इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। किस इक्वेशन से? तो कन्वोल्यूशन इक्वेशन से। कन्वोल्यूशन इक्वेशन कौन सी होती है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी hk the impulse response of the system into n minus k, okay. Now if you compare equation number 1 and equation number 2, what do we get? We get the value of hn as अगर इसको कंपेयर करें, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर हों, ये दोनों इक्वेशन 1 and 2 are equal to each other, then we will get yn to be bk divided by a naught, where n is changing from 0 to m and 0 otherwise। ये हमारा को hn की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, ये हमारे को hn की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो एक फाइनाइट लेंथ का होता है इस केस में, क्योंकि 0 to m वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर जो है ये 2, इट इज नथिंग बट व्हेन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो ऐसे केसेस में जो सिस्टम होता है वो आपको नॉन रिकर्सिव नेचर होती है उसकी, और ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम्स, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम यानी FIR सिस्टम, FIR सिस्टम, ठीक है। इट इज कॉन्ट्ररी टू द सिस्टम विच वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने इनफाइनाइट लेंथ, अगर इसका ऑर्डर जो है 1 या 1 से ज्यादा है, अगर n is greater than equal to 1, then the system will have an recursive nature, that is output will depend on previous values of output, और इस केस में हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि these systems have recursive nature। recursive मतलब रिपीट होती थी, देखा था ना आपने।
रिकर्सिव नेचर, क्योंकि पिछले आउटपुट का जो वैल्यू था वो नेक्स्ट आउटपुट पे आता था, फिर नेक्स्ट आउटपुट का प्रीवियस पे आता था, मतलब कि इट वाज रिकर्सिव नेचर। ठीक है, सो ये इसका रिकर्सिव नेचर होता है, और इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स होता है, इसको IIR सिस्टम कहते हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम IIR सिस्टम कहते हैं। ओके, तो जो जीरोथ ऑर्डर सिस्टम होता है वो होता है फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, क्योंकि उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है फाइनाइट लेंथ में नॉन जीरो होता है। ये 0 to m जो है फाइनाइट वैल्यूज हैं, अदरवाइज इसकी जीरो वैल्यू। और जो हमने जो सिस्टम, आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने ये वाला सिस्टम किया था, yn इक्वल टू xn प्लस हाफ y ऑफ n-1। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि n-1 हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गया। ये वन ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि इसमें फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है आउटपुट का। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट एंड पे आउटपुट इज डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट एंड द पास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज एन रिकर्सिव नेचर इन द आउटपुट। ओके, there was a recursive nature of the output because output depends upon the previous value of the input, and because of that इसका जो impulse response होता है वो infinite length का होता है। ठीक है, हमने ये निकाला भी था, आपको ध्यान होगा, hn की वैल्यू हमने इसके केस में निकाली थी, hn was half raised to power n un, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, half raised to power n un, क्योंकि ये अभी ये un क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट लेंथ की, hn हैज इनफाइनाइट लेंथ की वैल्यू। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन FIR एंड IIR सिस्टम्स। IIR सिस्टम्स और FIR सिस्टम में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। दिस वॉज द सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने लास्ट टाइम किया। ये देखिए, ये सिस्टम था, ये हमने किया था ना, ये है IIR सिस्टम है। इसमें हमने इनपुट को लिया था k डेल्टा n, उसके बाद में ये देखा था ये रिकर्सिव नेचर है। देखिए 0 की वैल्यू y-1 पे डिपेंड कर रही है, 1 पर वैल्यू आउटपुट की 0 पे डिपेंड कर रही है, एंड सो ऑन। सो इट इज एन रिकर्सिव नेचर। उसके बाद हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला था इसका 1/2 raised to power n un निकाला था, where n tends to infinity, therefore it is an infinite impulse response system and it has an recursive nature। whereas जो हमने आज पढ़ा है वो ये सिस्टम है, जीरोथ ऑर्डर का है। जीरोथ ऑर्डर होने की वजह से इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो फाइनाइट लेंथ का आएगा। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर सिस्टम है, तो जीरोथ ऑर्डर सिस्टम में आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन प्रेजेंट इनपुट एंड दी प्रीवियस इनपुट्स, नॉट ऑन दी प्रीवियस आउटपुट्स। देयरफॉर इसका जो हमने इसका अगर hk निकालेंगे, hn निकालेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स, इट विल बी नॉन रिकर्सिव इन नेचर, एंड देयरफॉर इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो फाइनाइट लेंथ का होगा। सो व्हेनेवर सिस्टम हैज फाइनाइट लेंथ इम्पल्स रिस्पॉन्स, इट विल बी ऑफ जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर का होगा, इसमें जो आउटपुट होगा इट विल बी नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द आउटपुट, एंड इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके।